right? Fine. Hmm. So confirm that my screen is visible to everyone. Yes. Okay. So first of all, this is the first screen of the PDF or PPT which I have created for SAP Solution Manager. The other different options or functionalities or the way how the Solution Manager works. So नो आप लोग सभी जो हैं वो सोल्यूशन मैनेजर के बेसिस कंसल्टेंट है, सोल्यूशन मैनेजर सीखना चाहते हो. देयर आर द सम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स like application operations, which comes as a technical monitoring, technical operations, system monitoring, dashboards, technical administration. Like if we are talking about application operations, then these 3-4 topics will be mandatory for this, like system monitoring. How can you configure system monitoring? What are the essentials of that? Now how can you make your solution manager ready to have the monitoring done? Second topic is comes as a business process operations, in which all business process of monitoring are being created in solution manager to monitor in effective way. एवरी कंपनी आपको अगर कोई क्वेश्चन होगा तो प्लीज आप मुझे बता सकते हो, बीच में इंटरप्रेट भी कर सकते हो एंड मैं उसका आंसर करूंगा. बट एज अ डेमो, एज जस्ट हम इन टॉपिक्स के डिटेल में भी जाएंगे, एवरी टॉपिक इन डिटेल दैट how we are doing that, but just as a information, as an overview, I am going through all the bullet points and topics. So बिजनेस प्रोसेस मॉनिटरिंग में हम नॉर्मली एवरी जो भी कंपनीज होंगे उनका डिफरेंट बिजनेस प्रोसेस होता है, वो मॉनिटर करते हैं. बिजनेस प्रोसेस इम्प्रूवमेंट एंड जॉब मैनेजमेंट, ये तीनों बिजनेस प्रोसेस ऑपरेशंस का पार्ट होता है. लाइक सेल्स ऑर्डर क्रिएशन से लेकर के आपका जो रिसिप्ट बनने तक, पेमेंट होने तक, ये पूरा का पूरा बिजनेस प्रोसेस एक साथ हम मॉनिटर कर सकते हैं सॉल्यूशन मैनेजर से. और अगर कहीं प्रॉब्लम आता है तो उसके रिलेटेड भी एक्टिविटी और एक्शंस डिफाइन कर सकते हैं. थर्ड है ITSM, इन सर्विस डेस्क. सो एक चीज क्लियर है कि ITSM सॉल्यूशन मैनेजर के थ्रू जहां भी इम्प्लीमेंट होता है वहां पर सारी की सारी चीजें सॉल्यूशन मैनेजर से चलती हैं. सो ITSM के थ्रू हम IT सर्विस मैनेजमेंट में हम जो कॉन्फ़िगर करेंगे वो स्टैंडर्ड ITSM का एक रिक्वेस्ट होगा, इंसिडेंट होगा, वो हम कॉन्फ़िगर करेंगे और हम देखेंगे. और उसके रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चंस होते हैं तो देन आई एम हियर टू हेल्प यू गाइस. नेक्स्ट इज चेंज कंट्रोल मैनेजमेंट. चेंज कंट्रोल मैनेजमेंट अलॉन्ग विद चेंज रिक्वेस्ट मैनेजमेंट 7.2 में ये काफ़ी अलग टॉपिक है. और ITSM, चेंज रिक्वेस्ट मैनेजमेंट, ये सभी प्रोसेस मैनेजमेंट का पार्ट है. सो वी विल ऑल्सो डू सम पार्ट ऑफ प्रोसेस मैनेजमेंट. And as well I will have some look on project management as well, that how the projects are configured and how it is accessible in SAP Solution Manager 7.2. Next is custom code management. Like if your company is creating, and if there are many of ABAPers from the past who have created many types of custom codes in the system, and it being used or not, everyone or no one in the company knows. Only some people know that how many transactions are being used, but actually the what percentage of custom codes being used in the system, that will be analytics and dashboard will be presented by solution manager, that yes, how many custom objects a mapper has created, how many of them is being used in production, and how much it is not being used. The third thing, the next part, which is landscape management, means altogether we are trying to get data and we are trying to configure it in solution manager, but from where the data comes in solution manager, that will
we will look in landscape management. As I said that I will also be doing some theory topics on process management, that how it works, solution documentation, how does it work, and next is test suite, in which we will create some of the test plans and we'll see that how we can execute the manual test plan as well as automatic tests. This is the overview of the all topics which we are going to cover in this session, not in this session but upcoming sessions as well. Any question before I move to next topic or next slide? कोई क्वेश्चन भाई साहब? विकी का क्या सेंस है? व्हाट इज द विकी? देखिए अलोंग विथ जो भी मैं डिटेल्स आपको बताऊंगा उसके साथ मैं विकी का एक लिंक भी आपको शेयर करूंगा कि इफ यू हैव एनी क्वेश्चन और कुछ आपको डाउट्स है तो वहां से जाके आप फाइंड आउट कर सकते हैं। एसएपी का जो विकी लिंक है स्पेसिफिक टॉपिक्स का, मैं जो डॉक्यूमेंट शेयर करूंगा उसमें विकी लिंक भी होगा। ओके, राइट, shall we move? Sure. यस, थैंक यू। देखिए सिंपल सी ये हमारे स्टैंडर्ड शुरुआत के जो टॉपिक्स होंगे वो कि हाउ सॉल्यूशन मैनेजर विल बी सेटअप डन, व्हाट आर द मैंडेटरी कॉन्फ़िगरेशंस वी आर planning or we have to do before we configure any of the functionality. देखिए कोई भी फंक्शनलिटी कॉन्फ़िगर तब होगा जब उसके बेसिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी सॉल्यूशन मैनेजर की। उसके पहले कोई भी काम नहीं करेगा आपका, कुछ भी कोई भी फंक्शनलिटी जो है वो आई शो कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिस पे वो कवर जिस पे वो डिपेंडेंट होता है, वो सारा का सारा चीजें करेगा। तो ये हमारा जो फर्स्ट डे का टॉपिक होगा वो सेटअप एंड कॉन्फ़िगरेशन ही होगा कि हाउ वी विल गो एंड कॉन्फ़िगर सॉल्यूशन मैनेजर, राइट? Okay. नेक्स्ट, ये तो इंस्टॉलेशन के बाद हम लोग करते होंगे ना? बिल्कुल इंस्टॉलेशन के बाद जो कॉन्फ़िगरेशन है जहां से पता चलता है कि सॉल्यूशन में। अच्छा, नाउ जस्ट वन क्वेश्चन, how many stacks are in solution manager 7.2? any idea? Two. Single. Java and ABAP both. Java and ABAP both in one stack or on a separate stack? Separate. एक्चुअली सॉल्यूशन मैनेजर का क्वेश्चन जो आप दोबारा पूछिएगा ना। मैंने बोला है कि सॉल्यूशन मैनेजर में कितने स्टैक हैं अभी? 2 स्टैक है ना, जावा स्टैक और ABAP स्टैक। हाँ मैं वही कह रहा हूँ, जो जावा स्टैक है जो डुअल स्टैक है और अलग अलग है। डुअल स्टैक क्या होता है? उसमें ABAP जावा दोनों एक साथ अलग अलग है, अलग अलग है इसमें। इंस्टॉलेशन Okay. भी दोनों का SID भी अलग अलग होता है, जावा का अलग SID और ABAP का अलग SID। Okay, and any idea which version is going currently, which is the latest version of solution manager 7.2? 7.2.4 SP4. Currently it is SP10, not SP10. SP10, and I think SAP is also planning to release SP11 in mid of May or start of June. Okay. Fine. So हम इस टॉपिक को कवर करेंगे कि सेटअप एंड Sudhir कॉन्फ़िगरेशन। यस, So what's the major difference between 7.1 and 7.2 except these dual stack? okay. 7.1, the major difference is that whatever the functionalities which we have, I think you will get to know once I go to different slides, right? But difference is that currently it is a dual separate stack, Java Solution Manager and ABAP Solution Manager. And Java Solution Manager is connecting only for the monitoring and diagnostic agent connection.
I'm sure that you are aware about the diagnostic agent, DA. DA. Yes. And now the all functionalities are moved on Fury based. So in ABAP, Fury based is Fury is not possible. That's why it moved to a browser based. Okay. And to UI5 light UI5 to and, use. yes, and to light up the solution manager, earlier it was very big solution manager. It was very complex, you can say, but SAP has simplified to use Java stack separate to ABAP stack. Because if anything, earlier we had seen that if anything is not running in Java, then we had to restart the complete solution manager system, not only the Java stack. Yes. But now we can separately start a solution manager and Java and ABAP both. Yes. So that is one major difference we can say, right? It is a lighter version. Earlier it was very vast, but now it is a lighter version of solution manager. Yeah, I think सर anyone ये add? मेरा क्वेश्चन था कि मतलब एक लेमैन की तरह अगर हम ये सोच रहे हैं कि अगर सॉल्यूशन मैनेजर की लैंडस्केप में हमारा 7.2 है तो क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है और क्या इसकी रिक्वायरमेंट है 7.1 और 7.2 की जगह। देखिए, रिक्वायरमेंट मोर ओवर सब सेम है, लेकिन जो पहले सॉल्यूशन मैनेजर एक बिग सिस्टम हुआ करता था, उसको लाइट कर दिया है एसएपी ने, अब ऐप को अलग करके जावा से, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो फंक्शनैलिटीज है वो अब ऐप पे रन करती है और जावा को ओनली कनेक्शन के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, यानी कि अगर हम एक लैंडस्केप में हम दो सिस्टम सॉल्यूशन मैनेजर का दो सिस्टम होगा जो कि कनेक्शन जो होगा वेब के लिए अलग होगा और जावा के लिए अलग होगा। नहीं, कनेक्शन सारा का सारा जावा से होगा। मैंने वही बताया कि कनेक्शन पर्सपेक्टिव से सारे सिस्टम जो कनेक्ट होंगे जावा से होंगे और जावा इंटरनली अबैप से कनेक्ट करेगा और जो भी आपको फंक्शनैलिटीज करनी है वो अबैप के थ्रू ही करनी है। आपको जो यूआरएल जो आपको एक्सेस करेंगे वो अबैप का करेंगे, वो अबैप का यूआरएल जावा से इंटरनली कनेक्ट करेगा। अच्छा, आगे टॉपिक्स में आपको बताएंगे कैसे आपको कनेक्ट करना है, क्या क्या चीजें उसके लिए चाहिए, बट जो भी कनेक्शन होगा डीएए के थ्रू वो जावा के थ्रू होगा, लेकिन वो जावा जो सिस्टम होगा वो अबैप से इंटरनली कनेक्ट करेगा और जो भी आपको फंक्शनैलिटी रन करना है वो अबैप पर ही करना है। ओके, ठीक है, फाइन। इसमें ये जो दो टॉपिक्स आपको दिख रहा होगा एसएलडी एंड एलएमडीबी, इसका मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि कनेक्शन कैसे होता है। नेक्स्ट, अभी आप सॉल्यूशन मैनेजर 7.2 के 4 की वैल्यूज हैं, ये अगर थोड़ा सा लेमैन के थ्रू या फिर अगर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के थ्रू होता तो ये ज्यादा समझ में आता। प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो टू प्रोजेक्ट, रिक्वायरमेंट टू डिप्लॉय, करेक्ट टू डिफेक्ट एंड रिक्वेस्ट टू फुलफिल। मैंने जैसे बताया था कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी एक टॉपिक है सॉल्यूशन मैनेजर में और वो यूज करना होगा, तो ये सारे के सारे जो 4 की वैल्यूज हैं वो यूज होते हैं। ओके, राइट। नाउ ये वही है जो कहाँ कहाँ कौन कौन से लाइक पोर्टफोलियो टू प्रोजेक्ट में कौन कौन से यूज होता है फंक्शनैलिटी, सो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होता है एंड देन प्रोसेस मैनेजमेंट होता है आपका, रिक्वायरमेंट टू डिप्लॉय एंड डिटेक्ट टू करेक्ट में। यू कैन सी दीज pillars and the horizontal lines, these are showing that where the different functionalities are dependent on these 4 key values: test suite, business process operations, application operations, DVM, change control management, ITSM, custom code management, and landscape management. So this is just a functional areas
where it fills the 4 key values. Now अभी ये देखिए, ये है सॉल्यूशन मैनेजर 1 से सॉल्यूशन मैनेजर 2 का डिजिटल माइग्रेशन। 7.1 से पहले 7.0 था जिसमें सब कुछ एक ही में था। 7.1 में थोड़ा सा चेंज हुआ और 7.2 जो हो गया वो पूरा का पूरा डिजिटल हो गया। इसमें जो मॉनिटरिंग होती है, आप ये देख लीजिए, वन प्रोसेस लैंडस्केप। अगर आपके कंपनी में, मेरी कंपनी में मोर देन 300 सिस्टम्स हैं, 300 सिस्टम्स हैं जो सॉल्यूशन मैनेजर से कनेक्ट करता है, और क्लाउड सिस्टम्स अलग हैं। तो मेरी कंपनी के लिए, किसी भी कंपनी के अगर बेटर, अगर एक सॉल्यूशन मैनेजर सेंट्रल सिस्टम है तो बाकी किसी और थर्ड पार्टी सिस्टम्स की जरूरत नहीं पड़ती कनेक्ट करने को, अगर बिजनेस आईटी की पर्सपेक्टिव देखा जाए तो, जिसमें प्रोसेस मैनेजमेंट, हाई क्लाउड एंड हाइब्रिड मॉनिटरिंग, SAP HANA, new user experience, as I said, for dashboards and UI5 applications. ये है हमारा चार्ट दैट सॉल्यूशन मैनेजर 1 से सॉल्यूशन मैनेजर 2 तक कैसे गया है। ये 2017 दिसंबर तक 7.1 आउट ऑफ मेंटेनेंस हो गया। अभी किसी की कंपनी में सॉल्यूशन मैनेजर 7.1 है क्या? मेरे यहाँ तो 2 है, 7.2। 7.1 का तो सपोर्ट ही बंद कर दिया SAP ने। हाँ, मेंटेनेंस उसका ऑफ हो गया। मेंटेनेंस ऑफ है, लेकिन मेरे पास सर्वर है जो कंपनी में, लेकिन उसको कोई यूज नहीं करता है, रखा हुआ है, एक्टिवली चल रहा है मतलब। हाँ, लेकिन वो जाके अब यूज सपोर्ट करना बंद दीपक हो भाई। जाएगा, अब उसको अपग्रेड करना ही पड़ेगा 7.2 में। नहीं, 7.2 अलग एक डिफरेंट अच्छा। मशीन पे इंस्टॉल करके वो यूज कर रहे हैं, लेकिन वो रखा हुआ है ऐसी 7.1। ठीक है, फाइल यही है वो, लॉन्च पैड्स एंड डैशबोर्ड, न्यू यूजर एक्सपीरियंस। सो UI5 में सारे एप्लीकेशन सब ओपन होते हैं। डैशबोर्ड्स थोड़े से एक्साइटिंग लगते हैं, इंटरेक्टिव लगते हैं, जो कि आज का थ्योरी बेस्ड है। ये है हमारा सॉल्यूशन मैनेजर 7.2 का लॉन्च पैड। It opens in a different tiles along with groups. पहले अगर 7.2 में 7.1 में आप लोगों ने यूज किया होगा तो याद है, वो केवल आता था आपका टॉपिक्स वाइज, राइट? वेब प्रो एप्लीकेशंस होते थे। अब वेब प्रो एप्लीकेशंस UI5 में कन्वर्ट हो गए और सारे के सारे एप्लीकेशंस UI5 में चलते हैं अब। ओके, ये है डिफरेंट डैशबोर्ड्स जो यूज होंगे अपकमिंग स्लाइड्स में या अपकमिंग सेशंस में। हम थोड़ा डेमो देखेंगे इसका। प्रोसेस मैनेजमेंट, ओके। बिजनेस प्रोसेस मॉनिटरिंग का सबसे बड़ा फायदा जो है वो है ये BPMN एडिटर। ये जो ग्राफिक्स देख रहे हैं आप, अभी जो ये प्रोसेस कैसे मॉडल करते हैं, प्रोसेस मॉडलिंग कैसे होती है, 7.2 में ये इनबिल्ड हुआ था, 7.1 में नहीं है दिया। तो ये तो ये जो होता है वो बिजनेस प्रोसेस मॉनिटरिंग में यूज होता है। अगर कोई फंक्शनल कंसल्टेंट है, उसको सिस्टम के थ्रू थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, तो वो इन ग्राफिक्स के थ्रू अपने बिजनेस प्रोसेस को मॉडल कर सकता है। और वो बिजनेस प्रोसेस मॉडलिंग बहुत जगह यूज होता है। टेस्ट स्विट में भी यूज हो सकती है, बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट में भी यूज हो सकता है, प्रोसेस मैनेजमेंट में भी यूज हो सकता है, जहां भी करना चाहे। नेक्स्ट, द प्रोसेस मैनेजमेंट एंड बिजनेस प्रोसेस मॉनिटरिंग। ये थोड़े से जो मैंने स्क्रीन से वो मैंने SAP से निकाल रखे हैं। लाइक अगर कोई प्रोसेस स्टेप रेड पर आता है तो उसके कलर रेटिंग कैसे दिखती है। तो इसमें जो प्रोसेस स्टार्ट होता है उसकी मॉनिटरिंग होती है, कहाँ पे रेड है कहाँ पे ग्रीन है, उसके अकॉर्डिंग फ्लो जो होते हैं वो सबको ईमेल नोटिफिकेशन भी भेजते हैं।
कि इस स्टेप पर ये फेल हुआ है, तो उसके रेस्पेक्टिव जो यूजर होगा उसको ईमेल जाएगा कि प्लीज चेक ऑन द डॉक्यूमेंट और प्लीज चेक ऑन द स्टेप व्हाट इज रॉन्ग. Next is solution documentation. आप लोगों में बहुत सारे लोगों ने 1601 1602 पहले यूज किए होंगे, अगर आप solution documentation यूज करते होंगे तो. If not, no problem. Solution manager एक स्टोरेज का भी काम करता है कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे आप वहां पर प्रोसेस वाइज स्टोर कर सकते हैं. तो वो पहले ABAP स्टैक पे चलता था, यानी कि 1601 1602 ट्रांजैक्शन के थ्रू उसकी ABAP के जो GUI है उसी में उसको देखते थे, और थोड़ा सा टिपिकल था एंड थोड़ा सा कह सकते हो कॉम्प्लेक्स भी था मेंटेन करना. लेकिन अब वो चेंज हो गया UI में, और इसका एक ही जगह सारा का सारा स्टोर होता है विथ डिफरेंट स्ट्रक्चर में. तो ABAP GUI से वो अब UI बेस्ड हो गया. ये आप लोग के लिए यूज का नहीं है. डिजिटल माइग्रेशन फाइन. देखिए UI 5 के जो डैशबोर्ड्स दिखते हैं वो ऐसे ही दिखते हैं, कुछ डिफरेंट टाइल्स होंगे, उसके टाइल्स में आपको दिखेंगे क्या क्या है, क्या क्या कैसे है. ये तो सॉल्यूशन मैनेजर रेडीनेस का डैशबोर्ड है जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का है, लेकिन समवेयर आपको ये टाइल्स ऐसे ही दिखेंगी कोई भी आप फंक्शनलिटी यूज करेंगे. नेक्स्ट आप लोग के लिए टेस्ट स्वीट का ये ग्राफ है जो आपको आने वाले टाइम में या आने वाले सेशंस में आपको ये देखने को मिलेगा. हालांकि इसका हम टेस्ट क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन इतना वास्ट हम देख नहीं पाएंगे. अगर आप लोग के पास सेक्शंस होंगे, आपके पास कोई यूज केस होगा तो जरूर देख पाएंगे. नेक्स्ट इज हाइब्रिड मॉनिटरिंग. किसी की कंपनी में अभी तो कोई क्लाउड आया है क्या, कोई अलॉन्ग विथ क्लाउड का कोई सिस्टम? क्लाउड का नहीं है. पिछले कंपनी में वर्चुअलाइजेशन पे चला, लेकिन वो उसका अलग कंसेप्ट है. Okay. Now, with 7.2, it is also possible to monitor the applications which are running on cloud, like Ariba, SuccessFactors, right? ऐसे जो applications हैं जो cloud पे run करते हैं, उसको भी हम solution manager से monitor कर सकते हैं. That's why solution manager को as a central monitoring system भी कहते हैं. Solution manager for cloud, with cloud and on cloud. वो solution manager और with cloud on cloud है. देखिए solution manager on cloud रखने का फायदा ये है कि आपको सारी की सारी चीजें जो क्लाउड बेस्ड है वहां से आप कर सकते हो. लेकिन पहले से अगर बिग कंपनीज में solution manager ऑन प्रीमाइसेस है और स्लोली धीरे 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 कुछ एप्लीकेशंस क्लाउड की आ रही हैं, तो आप वो क्लाउड की एप्लीकेशंस सॉल्यूशन मैनेजर से मॉनिटर कर सकते हैं, उसका डैशबोर्ड भी बना सकते हैं, उसको अपग्रेड कर सकते हैं. और ये जो है SAP सॉल्यूशन मैनेजर ऑन क्लाउड, SAP की एक सर्विस है क्लाउड अप्लायंस लाइब्रेरी यानी CAL. जब 7.2 आया था शुरुआत में, तो SAP ने रेकमेंड किया था कि आप अपने कुछ प्रोसेसेस को SAP CAL यानी एप्लीकेशन क्लाउड एप्लीकेशन लाइब्रेरी में पहले चेक करो कि कैसा चल रहा है. अब आपको फिट बैठता है, देन आप अपने सॉल्यूशन मैनेजर जो एग्जिस्टिंग सॉल्यूशन मैनेजर उसको 7.2 पे ट्रांसफर करो. तो हमने ये किया था. करीब करीब 1-1.5 महीने तक हमने इस पे अपना 2-4 प्रोसेसेस रन करे थे. उसके बाद जब हमें सुटेबल लगा, देन वी हैड ट्रांसफर टू 7.2. तो इसमें कुछ नहीं करना होता है. एक इंस्टेंस के हाउ कॉस्ट होता है, थोड़ा सा जो भी कॉस्ट होता है कंपनी को बियर करती है. इसमें एक रेडीमेड सॉल्यूशन मैनेजर 2 होता है और उसमें कुछ एप्लीकेशंस या फिर कुछ आपकी जो प्रोसेसेस है उसको वहां पर इंपोर्ट करके उसको रन करना होता है. वो जो इंस्टेंस जो बनाते हैं वहाँ पे क्लाउड पे, ऑन क्लाउड वाली बात कर रहे हैं, उसमें ऑटोमेटिकली वहाँ पे
एसएपी सॉल्यूशन मैनेजर इंस्टॉल रहता है या हमको फिर से करना पड़ता है इंस्टेंस वो में? जब आप इंस्टेंस क्रिएट करेंगे ना, हाँ हाँ। तो इंस्टेंस क्रिएट करते टाइम ही वो आपको जब वो लॉगिन करेंगे उसकी एप्लीकेशन पर, तो वहां पर आएगा क्रिएट। तो जैसे एक बटन आपको क्लिक करना है, बटन क्लिक करते ही आपका सोल्यूशन मैनेजर विद इन ए मिनट रेडी हो जाएगा, रेडीमेड। ओके, यानी कि वो वैसा ही टेम्पलेट सॉल्यूशन मैनेजर का ही टेम्पलेट वहाँ पे दे रखा है, बिल्कुल, जिसके लिए वो सिंगल इंस्टेंस को इंस्टॉल वो कर देता है, हाँ बिल्कुल। एक सोल्यूशन मैनेजर क्लियर कर सिस्टम देता है। आपको विद इन 5 मिनट्स आपको रेडी मिलेगा, और उसमें कुछ चीजें अगर आपको ट्राई करनी है तो कर सकते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड टेम्पलेट होता है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे क्लाउड में जो इंस्टेंसेस क्रिएट करते हैं वैसे ही उस पे भी है। वो कुछ नहीं है एक्चुअली, क्या है, एसएपी ने अजूरे एंड एडब्ल्यूएस के साथ टाई अप किया है, और टाइप ये कर जो रखा है। रेडी होता है वो जो आप सिलेक्ट करेंगे प्रोवाइडर, उसके अकॉर्डिंग उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पर वो एक रेडी कर देता है। इन्होंने टेम्पलेट सेट कर रखा है कि जस्ट क्लिक ऑन दैट एंड सॉल्यूशन मैनेजर विल बी रेडी। लेकिन हाँ, उसकी तो यूजर उसमें आईडी फिर स्टोरेज, उसमें उसका स्टोरेज का कुछ रहता होगा, स्टोरेज का? ऑब्वियसली उसका रहता है 15 to 20 GB होता है इनिशियल, जो आपको मिलता है T2 माइक्रो के साथ। अच्छा, तो वो नहीं आपके डेटाबेस के अकॉर्डिंग, आपका डेटाबेस अगर ज़्यादा नहीं, बड़ा है तो तो उसके हम अकॉर्डिंग। पूरा नहीं भेजेंगे। मैंने वही बताया कि जो आपको टेस्ट करना है वही आपको आप अपना पूरा डेटाबेस ट्रांसफर नहीं कर सकते उस पर। वो ओनली टेस्टिंग ओके पर्पस के लिए है कि आपको 7.2 के साथ लुक एंड फील और कितना आपके लिए सफाइस हो रहा है। ओके ठीक तो वो बस टेस्टिंग के लिए, उसमें आपको सारी की सारी चीजें नहीं भेज सकते, उसमें छोटी मोटी कुछ चीजें भेज के ठीक आपको बस देखना होगा। ठीक है। ठीक है, अब ये है ऑन प्रिमाइस। मैंने बताया था हाइब्रिड क्लाउड सिनारियोस, जैसे एसएपी अरीबा, एसएपी सक्सेस फैक्टर। अगर आप इसको मॉनिटर करना चाहते हैं सॉल्यूशन मैनेजर के थ्रू, तो उसके आपको ये डिफरेंट फंक्शनलिटीज हैं जो उसको सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट ये देखिए, मैं ये बोला था एसएपी कॉल डिप्लॉयमेंट। एसएपी कॉल इज नथिंग बट क्लाउड एप्लीकेशन लाइब्रेरी। वहां से स्टार्ट हो जाएगा और आप इनिशियल सेटअप करके आप छोटी मोटी चीजों को सेटअप कर सकते हैं एसएपी का एसएपी क्लाउड अप्लायंस लाइब्रेरी पर। अब ये है आपका डिफरेंट ऑप्शंस ऑफ सॉल्यूशन मैनेजर, क्या क्या कैसे कैसे चीजें हो रही है। Okay, now Solution Manager 7.2 is also available on HANA database, and for Solution Manager 7.2 HANA database is free licensing, means कि इसके लिए आपको कोई लाइसेंस नहीं देना पड़ता सोल्यूशन मैनेजर 7.2 के लिए अगर HANA यूज करते हैं तो। बाकी सभी के लिए आपको HANA की कॉस्टिंग होती है, बट इसके लिए कोई कॉस्टिंग नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और दूसरी चीज ये है कि अगर सोल्यूशन मैनेजर 7.2 HANA पर है, देन आपको अलग से कोई टेरेक्स सिस्टम इम्प्लीमेंट नहीं करना होगा जो सर्चिंग के लिए काम करेगा। इसमें इनबिल्ट ट्रैक्स आता है और वो आपकी जो सर्चिंग को फास्ट करता है। अगर कोई ओरेकल पे है तो ओरेकल पे अलग से ट्रैक्स को यूज करना पड़ेगा उसकी इंडेक्सिंग के लिए, उसकी टेक्स्ट सर्चिंग के लिए। 7.2 आप लोग के कंपनी में अब किस पर है, ओरेकल पर है, हाना पर है? मेरे यहाँ तो हाना पे। ओरेकल। ओके, अगर ओरेकल पर है एंड अगर आप ITSM एंड चाम कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं तो सबसे पहला रिक्वायरमेंट ये होगा कि आपको ट्रैक्स यूज करना होगा। ओके। और 7.2 के साथ जो हाना पर है
HANA पे इनबिल्ड आता है, तो उसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना होगा। तो ये हम लोग सीखेंगे ट्रैक्स को कॉन्फ़िगर करना। और देखिए, ट्रैक्स को कॉन्फ़िगर करना नहीं सीख सकते, लेकिन ट्रैक्स को कैसे मींस गाइडेड प्रोसीजर है, उसके थ्रू हम जाके हम देख सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं कि हाउ इट वर्क्स। बट ट्रैक सिस्टम होना चाहिए आपके ऑर्गेनाइजेशन में और आपके लैंडस्केप में। ट्रैक्स अलग सिस्टम हो गया। बिल्कुल। आपने अगर हाना डेटाबेस पढ़ा होगा तो उसमें आर्किटेक्चर में ट्रैक्स आता है ना। वो अलग है। मींस अगर ओरेकल है तो आपके घर, आपके ऑफिस में, आपके ऑर्गेनाइजेशन में ट्रैक्स अलग सिस्टम ही होगा। ट्रैक्स और इससे सॉल्यूशन मैनेजर का एक नहीं बोल सकते, बहुत अलग है। वो अलग है, हालांकि वो उसको यूज करते हैं बाकी जो सर्च फंक्शनैलिटीज को इनेबल करने के लिए। ठीक। नेक्स्ट इज कुछ क्रॉस टॉपिक्स हैं। फोकस सॉल्यूशन, किसने फोकस इनसाइट्स, फोकस बिल्ड के बारे में नाम सुना है? आपकी कंपनी में डैशबोर्ड्स बने होंगे कुछ। एनीवन? नो प्रॉब्लम। एसएपी ने 2 डिफरेंट सॉल्यूशंस लॉन्च किए थे 2017-16 में, फोकस इनसाइट्स एंड फोकस बिल्ड करके। पहले इसका नाम था मैंगो डैशबोर्ड, फिर बाद में उन्होंने इसको नाम चेंज करके बोल दिया फोकस्ड इनसाइट्स। तो फोकस इनसाइट्स जो डैशबोर्ड बनता है, एंड फोकस बिल्ड जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए एंड बाकी अदर एप्लीकेशन लाइफ साइकिल मैनेजमेंट के लिए यूज होता है। अब देखिए, और ये कॉस्ट टू कंपनी होता है, यानी कि इसके लिए लाइसेंस लगता है। अगर कोई बिग ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके लिए फ्री होगा, लेकिन बाकी कंपनीज के लिए पर यूजर इसकी कॉस्ट होती है। वो एसएपी से आपको पता चल जाएगा। लाइक फोकस बिल्ड में आपको यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। ऑटोमेटेड विजिबिलिटी ऑफ सॉल्यूशन रेडीनेस अगेंस्ट ड्यू डेट्स एंड इंटीग्रेटेड रिस्क मैनेजमेंट, यानी ये फोकस बिल्ड जो एप्लीकेशन लाइफ साइकिल मैनेजमेंट के लिए यूज होता है। एंड फोकस इनसाइट्स डैशबोर्ड्स होते हैं जो आपको कॉन्फ़िगर करने पड़ते हैं, जो आपकी कंपनी के लिए यूजफुल होते हैं। यह फोकस बिल्ड का थोड़ा सा आर्किटेक्चर, द फ्लो, हाउ इट वर्क्स, डिमांड, डिजाइन, डेवलपमेंट, टेस्ट, डिप्लॉय। क्योंकि आई नो ऑल आप सभी जो है टेक्निकल है, लेकिन जो सेटअप करना होगा वो टेक्निकल को ही करना होगा। वो फंक्शनल वाला केवल वो तो यूज करना जानता है कि हम इसको यूज कैसे करेंगे, बट कॉन्फ़िगरेशन की जहां तक बात आती है तो बेसिस वाला ही करता है, चाहे इंस्टॉलेशन हो। और ये एक एड ऑन करके आता है, STOST करके, सॉल्यूशन मैनेजर में जो इम्प्लीमेंट इंस्टॉल होता है एड ऑन। और ये एड ऑन एज ए फोकस बिल्ड एंड फोकस इनसाइट्स दोनों काम करता है, यानी एक ही कंपोनेंट के ये 2 डिफरेंट पार्ट्स हैं, बिल्ड एंड इनसाइट्स। ये लाइक ऐसे कुछ डैशबोर्ड्स दिखते हैं आपको, स्ट्रैटेजिक, गवर्नेंस एंड ऑपरेशंस डैशबोर्ड, यानी कि हिस्टोरिकल डेटा भी आप देख सकते हैं। और सॉल्यूशन मैनेजर में एक चीज और है कि आपको BW इनबिल्ड मिलता है, बिजनेस वेयरहाउस, ताकि जो मॉनिटरिंग डेटा होती है वो कहीं ना कहीं स्टोर होती है। तो ये सॉल्यूशन मैनेजर के BW में ही स्टोर होती है। ये कॉन्फ़िगरेशन के टाइम पे हम देखेंगे कि कैसे कहाँ पर कनेक्ट करेंगे, लेकिन एज अ ओवरव्यू सॉल्यूशन मैनेजर में BW इनबिल्ड होता है, CRM इनबिल्ड होता है, तभी आप चेंज रिक्वेस्ट मैनेजमेंट एंड ITSM की टिकटिंग टूल इनेबल करते हैं। ये वही है जो स्टार्टिंग में हमने जो बताया था, लाइफ साइकिल, हाउ द लाइफ साइकिल वर्क्स, वैल्यू चेन एंड सॉल्यूशन डिलीवरी। आपको मैं जब सॉल्यूशंस बताऊंगा तब ये आपको आर्किटेक्चर थोड़ा सा अच्छा लगेगा और सही लगेगा कि हाँ हाउ इट वर्क्स। क्योंकि ये है हमारा ब्रांचेस। सॉल्यूशन मैनेजर
अगर पहले 7.1 में किसी ने यूज किया होगा या 7.2 में अभी यूज कर रहे होंगे तो उसमें सॉल्यूशन नाम का एक टर्म यूज होता है और ब्रांचेस। कोई अवेयर है इसके बारे में? सॉल्यूशन, ब्रांच। ओके, सॉल्यूशन हम यूज करते हैं एज अ सिंगल ट्रूथ, यानी जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी मीन्स सॉल्यूशन माने में जो भी सिस्टम्स होंगे, जो भी कंपोनेंट्स होंगे, जो भी आपके फंक्शनैलिटीज होंगे, वो कहीं ना कहीं सॉल्यूशन से और ब्रांचेस से रिलेटेड होंगी। चाम में आप यूज करते हैं तो चाम भी, और जितने प्रोसेस मैनेजमेंट के जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी फंक्शनैलिटीज हैं, सभी इस सॉल्यूशन और ब्रांच से आप लोग को रिलेट करेगा। अपकमिंग सेशंस में हम इस चीज को देखेंगे कैसे कैसे कहाँ पे इम्पैक्ट करता है। बगैर इसके आपका सॉल्यूशन मैनेजर काम नहीं करेगा। तो एज ए जैसे ग्राफ में दिया है, ग्राफ में स्टार्ट किया है ये इंपोर्ट ब्रांच, डिजाइन ब्रांच। जो इनिशियल ब्रांचेस होते हैं वो 3 होते हैं, प्रोडक्शन, मेंटेनेंस एंड डेवलपमेंट। प्रोडक्शन लॉक्ड होता है, इसमें कोई भी चेंजेस आप नहीं कर सकते। डेवलपमेंट में कुछ भी डेवलपमेंट होता है तो डेवलपमेंट ब्रांच में ही होता है। और मेंटेनेंस में बग फिक्सेस होते हैं, यानी अगर कोई शॉर्ट टर्म कोई मेंटेनेंस एक्टिविटी है, लाइक कोई बग फिक्सेस है, वो मेंटेनेंस ब्रांच से शुरू होता है। और कोई लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट है जो पीपीएम के थ्रू आ रहा है, वो आपका डेवलपमेंट से होगा। उसके सब ब्रांचेस है डिजाइन एंड इंपोर्ट। ये बाद में मैं बताऊंगा कि डिजाइन एंड इंपोर्ट कौन कौन से ब्रांचेस हैं। और टॉप ऑफ द प्रोडक्शन एक और ब्रांच है, वो है ऑपरेशंस ब्रांच। जितनी भी मॉनिटरिंग बीपीमॉन से रिलेटेड होती हैं, सभी ऑपरेशंस ब्रांच में होती हैं। ये है डिफरेंट आपके जो टॉपिक्स हैं। इंटीग्रेशन मॉडल है, अगर हम स्टार्ट करें पोर्टफोलियो टू प्रोजेक्ट से, तो उसके बाद रिक्वायरमेंट टू डिप्लॉय में कौन कौन सी फंक्शनलिटीज यूज होती हैं। प्रोजेक्ट लैंडस्केप, रिक्वायरमेंट लैंडस्केप, अजाइल, टेस्ट ऑटोमेशन, लर्निंग। देन रिक्वेस्ट टू फुलफिल में आपका जॉब शेड्यूलिंग आ गया, मॉनिटरिंग आ गया, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट हो गया। फिर करेक्ट टू डिटेक्ट में आपका फिर से जॉब शेड्यूलिंग एंड ITSM एंड इनहांस, इनोवेट एंड बग फिक्सेस। ये 3 डिफरेंट मॉडल्स हैं किसी भी प्रोजेक्ट के। ये है हमारा स्टैक स्प्लिट। सॉल्यूशन मैनेजर 7.2 में स्टैक स्प्लिट हो गया। अभी जो 7.1 में था वो है SAP CRM 7.0 EHP 1 था, SAP PPM 5.0 था एंड SAP NetWeaver 7.02 ऑन डुअल स्टैक था, ABAP एंड जावा क्लासिकल डेटाबेस पर। उसको स्टैक करके सॉल्यूशन मैनेजर 7.2 में ABAP स्टैक जो होगा वो 7.0 EHP 3 का SAP CRM होगा, SAP PPM 6.1, SAP NetWeaver 7.40। ये 7.2 SP 8 तक का था, लेकिन SP10 SP9 ऑनवर्ड्स ये SAP NetWeaver 750 हो जाएगा और SAP NetWeaver 750 जावा भी हो जाएगा। आपका डेटाबेस कोई भी हो, चाहे वो Oracle हो या डेटाबेस हो, सॉरी Oracle हो या HANA हो। ये थोड़ा सा इम्पैक्ट है। 7.1 से 7.2 पे जाएंगे तो कौन कौन से फंक्शनैलिटीज का इम्पैक्ट रेशियो क्या होगा, मीन्स कि कौन से फंक्शनैलिटीज आपको लो इम्पैक्ट होगा, कौन सा मीडियम होगा, कौन सा हाई होगा। एंड उसके बाद दैट्स ऑल फॉर फ्रॉम द स्लाइड।